How are you all? I hope so you all are fit at your home. As you are staying at home now, that means you are good at your home. So students, as you know that this is your math session and I am your math teacher and you are the students of my class. So let's begin our session with a very beautiful thought of the day. Thought of the day is that hard work is the key of success. I repeat, hard work is the key of success. This thought I am telling you as you have to write on the top of your notebook. So students, as you know that we are doing with the chapter number 3 and in this class we are going to add the chapter number 3 and we have to do the last exercise. So I have divided this exercise part into two. First, in the first part we are going to do question number 1 to 5 and in the other part we are going to do question number 6 to 10. Okay, so as you know that I used to ask a question from you, again I have brought a very interesting question for you. Who is known as father of mathematics? I repeat, who is known as father of mathematics? And the answer will be given to you in the end of this session. Now students, question number 1. Find LCM by prime factorization method. So now in this question you have to find the LCM by which method? By prime factorization method. As you can see that A part is 12 and 42. So I will show you the LCM. Draw a line like this and cut it by another line and write 12 over here. So students, you can see that 12 is in your even number. 12 हमारा क्या है? Even number. So it is divisible by 2. 2 6 is 12. Your result is 0. तो अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगी तो I will get 6 over here like this. Yes or no? Similarly, 2 6 is again divisible by your 2. So when you divide 6 and 2, अगर हम 6 और 2 को डिवाइड करते हैं 2 3 is what? 6. Your again result is 3. Now students, you can see that 3 is not divisible by 2. So we have to take 3 over here. अब डिफरेंस क्या है? प्राइम फैक्टर्स में हमारे प्राइम नंबर्स ही आते हैं, चाहे वो HCF हो चाहे वो LCM हो. बट लेकिन HCF में हमें सिर्फ एक कॉमन नंबर चाहिए, जो जैसे ये दो नंबर्स गिवन है इनमें जो कॉमन नंबर होगा वो हमारा HCF होगा. बट यहाँ पर क्या होगा? कॉमन के साथ साथ. सो स्टूडेंट्स, फाइंडिंग ऑफ मेथड ऑफ LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ तक तो सेम है HCF और LCM का, बट डिफरेंस कहाँ आएगा? लास्ट में, जो मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पर हमारा 42 रह गया, वी विल राइट 42 ओवर हियर. अब 42 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय योर 2. तो 42 को डिवाइड करेंगे हम 2 से. 2 2 इज व्हाट? 2 2 4. 4 minus 4 will give you 0 and this 2 will come down. 2 1 is 2. तो अगर मैं 42 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो I will get 21. Now you can see that 21 is not divisible by 2, but yes, it is divisible by 3 because 7 3 is 21. तो अगर मैं 21 को 3 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ जाएगा 7. ठीक है, और 7 तो अपना खुद का ही प्राइम नंबर है तो वो तो किसी टेबल में आएगा ही नहीं, सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा. तो 7 को हमने 7 से डिवाइड किया और हमारा रिजल्ट आ गया. अब हम लिखेंगे फैक्टर्स. फैक्टर्स यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स. ओके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12. नाउ स्टूडेंट्स, 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3. Similarly, prime factors of 42. So write prime factors of 42. Now you can see that 2 into 3 into 7. 2 into 3 into 7. Now students, अब हमें क्या देखना है? अगर हमारा HCF होता है यहाँ पर तो HCF में हमारा जो भी नंबर आता है यहाँ पर, जैसे 2 कॉमन है तो हमारा HCF हो जाता. बट हमें निकालना है LCM, तो यहाँ पर हमें पेयर देखना है. 2 का एक पेयर हो गया तो आप यहाँ पर लिखिए 2 into. अब आप देखो यहाँ पर 3 का एक पेयर है तो into में आप लिखिए 3. अब आपका 2 is left over here and 7 is left over here, so multiply both of them. उन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो LCM आएगा बच्चे वो क्या आएगा? 3 2 6, 6 2 12, 12 7 is 84. तो हमारा जो LCM आएगा बच्चे वो आएगा 84. So the LCM of your A part is 84. We are going to do 2 parts of question first so that your concept will become clear. I hope so. Now students, let's move to the B part of our first question. B part contains 3 numbers, 45, 70 and 90. So what we have to do? We have to find prime factor of 45 first. Now if you see
सी दिस 45 इज डिविजिबल बाय 3। 45 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 45 और 3 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 15। अगेन हमारा 15 3 से डिविजिबल है, ओके। व्हेन यू डिवाइड 15 एंड 3 यू विल गेट 5। अगेन जो हमारा 5 है वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड नंबर पे, दैट इज 70। सो राइट 70 like this. Okay, now you can see that last digit is 0. That means the number is divisible by 2. हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी कह रहा है अगर हमारा लास्ट डिजिट 0 होता है तो हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर आप 70 को you are dividing with the 2, 2 3 is what 6. Now 7 minus 6 will give you 1 and this 0 will come down and 2 5 is 10 and your result will be 0. तो जब आप 70 और 2 को डिवाइड करोगे you will get 35. Now if you look over here, the 35 is not divisible by any of the number except 5. 5 के अलावा 35 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। और जब आप 35 और 5 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 7, और 7 हमारा सिर्फ केवल 7 से ही डिवाइड होगा। अब हम आते हैं बेटा थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर इज बच्चे 90। So your last number is 90. If I divide 90, the last digit is 0. If I divide 90 with the 2, I will get 45. Yes or no? Yes. Similarly 45, अब आप देख सकते हो यहाँ पर, अब हमने यही पैटर्न फॉलो कर देंगे यहाँ पर क्योंकि हमारा 45 आया है। तो 45 will be divisible by 3. So when you divide 45 with the 3, you will get 15. Similarly, if you divide 15 again by 3, you will get 5. और 5 तो 5 से डिवाइड होगा। तो अब हमारे तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकल रहे हैं, बस हमें उन्हें we have to write. So what I am going to do, simply write prime factor of your first number 45 equals to 3 into 3 into 3 into 5. Similarly prime factor of 70, 2 into 5, okay, 5 into 7. Again your prime factor of your 90, मैं डैश डाल रही हूँ, डैश मतलब सेम डिजिट लिखनी है और आपने नोटबुक में ऐसे नहीं लिखना, आपने कंप्लीट लिखना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 90, so that is 2 into 3 into 3 into 5. अब हम देखेंगे बच्चे कि इनमें से कॉमन पेयर किसका है। अगर आप देखो तो 2 हमारा सिर्फ इन दोनों में कॉमन है, तो इस 2 को हम बाहर निकालेंगे एलसीएम के लिए। वी हैव फाइंड इट आउट। अगेन स्टूडेंट्स लुक ओवर हियर। नाउ 5 यू कैन सी दैट 5 इज हियर एंड 5 यहाँ पर भी है, तो हमारा 5 यहाँ कॉमन आ गया, तो हम एक 5 को टेक आउट कर लेंगे इनटू। अब आप देखो जो ये 3 है और ये 3 है, इसका एक पेयर है तो मैंने यहाँ बाहर निकाला। सिमिलरली ये वाला 3 और इसका 3, मतलब एक पेयर 3 का यहाँ है तो हमने 3 आउटसाइड लिया, एक 3 का पेयर यहाँ पर है तो हमने 3 को अगेन आउटसाइड लिया। अब हमारा लेफ्ट क्या रह गया, नंबर 7 रह गया, तो उसकी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट कॉपी इट डाउन, देन आई एम रबिंग इट, बिकॉज इसे रब करने की नीड होगी बच्चे। सो मैं अबव पार्ट क्वेश्चन रब कर रही हूँ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लुक ओवर हियर बच्चे। 5 2 10, 10 3 30, 30 3 is 90 और 97 is 630। तो इन सब की मल्टीप्लाई करके एलसीएम विल बी 630। Is that clear? The LCM of your number will be 630. Now students, question number 2. Find LCM of the following by division method. I have told you in the starting of the video that in the starting of the class that we are finding with the second question with division method, that is common division method basically. So there are 4 numbers. तो अब इन 4 numbers को देख के डर मत जाना कि अब इनका LCM कैसे होगा। हमें कुछ नहीं करना, कॉमन डिविजन मेथड का हमें बहुत एडवांटेज मिलता है। राइट अ लाइन एंड कट इट एंड राइट ऑल नंबर्स टुगेदर। हम एक ही साथ अलग अलग फाइंड आउट करने के बजाय हम एक ही साथ इनका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये सबसे इजी मेथड होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देयर आर 4 नंबर्स। फर्स्ट वी हैव टू लुक फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड मैक्सिमम नंबर्स इन द सीरीज।
हमें एक ऐसे नंबर को सर्च करना है जो मैक्सिमम नंबर्स को हमारा डिवाइड कर पाए। तो अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हो, 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, 30 is also divisible by 2 and 90 is also divisible by 2. So that is why I have chosen 2 over here. So जैसे अब मैं 24 और 2 को डिवाइड किया, फास्टली देखिए, 24 is divided by 2, 2 1 is 2 and this 4 will come down, 2 2 is बच्चे 4। तो जैसे ही आपने 24 को 2 से डिवाइड किया तो आपको 12 is the result, तो 12 you will write over here. अब 27 is not divisible by 2, so we are going to write 27 as it is. Clear? Similarly 30 is divisible, so now students 30 is divisible by 2, 30 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है because one's digit is 0, so when you divide 30 by 2 you will get 15 at the above. Okay, ठीक है, 2 15 जा 30 होता है, तो अब हमारे यहाँ पर आया 15। Similarly 90 भी आपका 2 से डिवाइड होगा, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ आपको बताया है। तो जैसे आपने 90 को डिवाइड करा 2 से, यू विल गेट 45 ना। अब आपका फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं सेकंड स्लॉट पर। अभी भी हमारा जो 12 है, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। यहाँ पर 2 कब तक लेना होगा, जब तक हमारे यहाँ पर 1 नहीं आ जाते, सारे नंबर्स को हम 1 नहीं बना देते, ठीक है, तब तक हमें ना 12 को अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 6। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि 27 फिर से 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो राइट 27 एज इट इज। सिमिलरली हमारा 15 भी 2 से अनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं होगा, तो 15 भी एज इट इज आएगा। 45 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2, सो राइट 45 एज इट इज। ओके, सो नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, यू कैन सी ओवर हियर स्टूडेंट्स, अगेन 6 इज लेफ्ट, तो हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर 3। जैसे ही आपने 6 को 2 से डिवाइड किया तो आपको 3 मिलेगा। अब 27 अगेन एज इट इज, 15 अगेन एज इट इज एंड 45 अगेन एज इट इज। अब नाउ लुक एट दिस सीरीज, दिस ऑल नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 3। ये सारे के सारे नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे हमारे। तो आई हैव रिटन 3, मैंने 3 और 3 को डिवाइड किया, मुझे 1 मिला। अब यहाँ देखिए, मैंने 27 को जैसे ही 3 से डिवाइड करा, 3 9 इज 27, तो मुझे यहाँ पर 27 और 3 को डिवाइड करके मिला 9। 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 5 इज 15। तो जैसे ही मैंने 15 और 3 को डिवाइड किया मुझे 5 मिला, आई गॉट 5, तो यहाँ पर हम 5 प्लेस करेंगे। सिमिलरली 45 आपका डिवाइड होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 15। ओके, अब यहाँ तक तो सबको क्लियर होना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम बी पार्ट करेंगे ताकि कोई भी आपको परेशानी ना हो। अब आप यहाँ पर सर्च करें बच्चे, ये सारे नंबर फिर से 3 से डिवाइड हो सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमारा 1 ऑब्टेन्ड हो गया, तो वी हैव डू नथिंग विद इट। अगेन अगर आप 9 और 3 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 3। 5 हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 को आप एज इट इज लिखोगे। सिमिलरली 15 और 3 को आप डिवाइड करोगे तो यू विल ऑब्टेन 5। अभी भी यहाँ पर 1 के लिए हमारा 3 लेफ्ट है, तो यहाँ पर अभी आप 3 लेंगे दोबारा से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और यहाँ पर क्या आएगा 5 5। तो अब बच्चे हमारे यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप रह गया जो मैं यहाँ कंटिन्यू करूँ बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द स्पेस। सो राइट 1 1 एंड 5 एंड 5 लाइक दिस। अब इसको हम किससे, लास्ट डिजिट हमारी कौन सी जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, यस अगर हमारे पास 5 है तो वी कैन डिवाइड इट बाय 5 ओनली ना। तो 5 को हमने यहाँ पर लिखा, 1 तो एज इट इज आएंगे एंड दिस when you divide this 5 with the 5 you will get 1. Similarly when you divide this 5 with the 5 you will get 1. तो अब हमारा यहाँ पर फाइनल हो गया, nothing we have to do, just write the number. So now students what we have to do, simply just write LCM of 24, 27, 30 and 90 is equals to the number you obtained, multiply them. So here we got 2 is how many times, 1 2 3 times. तो 3 times हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे into your 3 is how many times students, 3 times. तो we have written 3 times. Again you have obtained 1 5 over here, तो 5 की भी आप मल्टीप्लाई करोगे। इसमें आपको इसका ये एडवांटेज है कि कोई कॉमन डिजिट लेने की जरूरत नहीं है, जो भी डिजिट यहाँ ऑब्टेन्ड होंगी नंबर्स के साथ आप उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 4 4 2 8, ठीक है, इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8 मिला।
सिमिलरली इन 3s को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 27 मिला और 5 मेरा रह गया था। तो अब 27 की मल्टीप्लाई मैंने 8 से की, मेरा कुछ रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा फिर उसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5 से। ठीक है, तो मैंने जब 27 और 8 की मल्टीप्लाई की, आई ऑब्टेन्ड 216 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 5। तो जैसे मैंने 216 की मल्टीप्लाई 5 से की, आई गॉट 1080 एज द एलसीएम, 1080 एज द एलसीएम। Is that question clear? B part, same procedure we have to follow. As you know that we have to apply division method. That means we have to take all the numbers together for finding our LCM. So now what's the next procedure? So students, look at the ones digit first. You can see that here 0 is there, in the 48 8 is there, and in 120 0 is there. That means all the three numbers are divisible by 2 because the number which is ending with the 0, 2, 4, 6, 8 are all divisible by 2. So 30 को हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चे? 15 आएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, ये आपका इसका मतलब है कि यू आर डिवाइडिंग ऑल द नंबर्स विद दिस वन। ओके, सो 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आपको मिलेगा। 48 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 24। सिमिलरली आप 120 को जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे, चेक करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। 2 6 इज 12, यहाँ पर जो 0 लेफ्ट हुई है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा 60। तो अब आप फिर से देखो, 15 को छोड़कर लीव 15, 24 and 60 again divisible by 2, so we will write 2 over here. Write 15 as it is not divisible by your 2. Okay, now if you divide 24 by 2, what you are going to get? 12. Similarly, when you divide 60 by your 2, you will get 30. Yes or no? अब आप फिर से देखो कि 15 को छोड़कर 12 और 30 अगेन मेरा 2 से डिवाइड हो सकता है, तो I will write 2 over here. Yes or no? So if you are going to divide 12 with the 2, what you will get? If you divide 12 with the 2, 2 6 का क्या होता है बच्चे? 12 होता है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 12 को जब 6 से 2 से डिवाइड किया तो मुझे 6 मिला, और 15 को तो मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा बिकॉज 15 तो मेरा डिवाइड होगा नहीं 2 से। और जब हमने 30 को डिवाइड करा 2 से, 2 1 is 2, 3 minus 2 will give you 1 and this 0 will come down, so 2 5 is 10। ये मैं डिवीजन जो कर कर आपको हर स्टेप में दिखाती हूँ, इसका रीजन ये है कि जो डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पा रहे, जो नहीं समझ पा रहे कि मैम क्या कहना चाह रही है, वो ये चीज को समझे कि हमारा जो भी नंबर यहाँ पर रिटर्न है वो यहाँ पर जो आप नंबर लिखोगे उससे डिवाइड होगा। ठीक, और मुझे नहीं लगता अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए। तो 30 और 2 को आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 15। क्लियर? नाउ यू विल सी दैट ओनली 6 इज डिविजिबल बाय योर 2, तो हम उसे डिवाइड करेंगे। 15 नहीं डिवाइड होगा, राइट इट एज इट इज। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 मिलेगा, 15 राइट इट एज इट इज। अब ये जो तीनों नंबर है, नंबर 3 यू ऑब्टेन इज डिविजिबल बाय योर 3, तो 15 और 3 को आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 5। सिमिलरली 3 और 3 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 1। 15 और 3 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5, और लास्ट में हमारा क्या रह गया 5। तो 5 को मैंने सारे यहाँ पर लिखकर डिवाइड कर दिया तो सारे लेफ्ट नंबर्स 1 हो जाएंगे। तो अब हमारा लास्ट में क्या प्रोसीजर है? सबसे इजीएस्ट प्रोसीजर होता है हमारा कॉमन डिवीजन का, कि जो नंबर यहाँ पर ऑब्टेन्ड हुए सारे, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम। सो राइट एलसीएम ऑफ 30, 48 and 120 is equals to, multiply all the numbers fastly and tell me the answer. 2 is how many times? 1 2 3 4. So write 2 4 times as into for our LCM. Into 3 is 1 time, into your left 5. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Okay, 16, and when you multiply 3 and 5 you will get 15. इस तरह से स्प्लिट कर करके मैंने मल्टीप्लाई किया ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और 16 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो यू विल गेट 240। सो द एलसीएम ऑफ, आई एम राइटिंग वंस अगेन, एलसीएम ऑफ 30, 48 and
120 is equals to this. Common multiples in the following. Question is that you have to find two common multiples. I have not written complete questions, but yes, two common multiples, question mark, that means we have to find them. Your A part is 3 and 4. Two numbers are given to you. In these two numbers you have to find out two common multiples. So simply write multiples. अब multiples तो बहुत easy है. Multiples of 3 is equals to, start finding out with me. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, आगे 3 4s are 12, after that multiple will be 15, after that 18, after multiple 21, after that 24, 27 and the 30. मैंने 3 के 10 मल्टीपल्स आपके सामने लिख दिए. ठीक है, अब हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4. ओके, तो राइट डाउन द 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, and then 24, then 28, 32, 36 and 40. Complete 10 multiples of 4 I have written. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओनली टू कॉमन मल्टीपल्स. तो यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है? दो कॉमन मल्टीपल्स, यानी टू कॉमन मल्टीपल्स. अब आप चेक करो इसमें से कौन सी कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं, कौन सी कॉमन नंबर्स है. यू कैन इजिली डिटेक्ट देम. 12, आई एम सर्कलिंग ओवर हियर, you can see that. So yeah, our first common multiple is 12. Next one, search 24. So next one is 24. 24 is present here, 24 is present over here. So 24 is our common multiple. Is that clear? That we have to find the multiples of 3, then multiples of 4 and then two common multiples निकालना easy है. तो उसमें से दो डिजिट जो भी कॉमन आ रही हो 3 के टेबल में और हमारे 4 के मल्टीपल्स में, उनको आप कॉमन ले लोगे. Is that clear? What we have to do, same as we done in the previous one. Multiples of 4. So what are the multiples of 4? As we have written in the previous one, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 16, 20, 24. After that 28, after that 32, 36 and 40. And after that we have to write the multiples of 12. So multiples of 12. Now students, multiples of 12. As I have written the multiples of total 12. मतलब 12 10 तक मैंने उसके multiples लिखे. तो common number हमारा क्या है? देखो 12 here is common and 12 is also present over here in the 4. Similarly 24 is present in the 4 and 24 is present in the 12 also. So what are two common multiples? Two common multiples of 4 and 12 are 12 and 24. Is that? Now students, question number 4, page number 30. As you know that of your exercise 3.4, find the HCF and LCM of the following pairs of number. Like this is the pair is given to you and you have to find the HCF also from these two numbers, and you have to find the LCM of these two numbers. So after that what you have to do, as you know that you have done the formula HCF into LCM is equals to product of number. तो सेकेंड पार्ट में हमें ये भी प्रूव करना है कि अगर हम HCF और LCM की इंटू करते हैं तो जो ये दो नंबर्स अवेलेबल है ना, इनकी अगर हम इंटू करते हैं तो वो इक्वल हो. मीन्स LCM और HCF की इंटू जो रिजल्ट आएगा करके वो, और जो इन दोनों नंबर्स के हम मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों इक्वल है कि नहीं, ये भी हमें प्रूफ करना है. तो दो पार्ट हमें अब इस क्वेश्चन में परफॉर्म कर रहे हैं. पहला HCF और LCM फाइंड आउट करने का, फिर उसके बाद हमारा LCM और HCF का फॉर्मूला अप्लाई करने का कि हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट 13 and 52 इज रिटन. इसको करने के मेथड है बहुत सारे. कुछ मेथड ऐसे होंगे जिसमें आपको लिखा होगा 13 into 1, ठीक है, और 52 सिर्फ प्राइम फैक्टर ऐसे लिए हुए होंगे. तो हम उस मेथड को फॉलो ना करते हुए, क्योंकि वो डिफरेंट टाइम में जाएगा, तो हम उसे ना फॉलो करते हुए जो आपने अभी तक करा हुआ है ना प्राइम फैक्टर वाला, मैं वही मेथड यूज कर रही हूँ. तो मैंने 13 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाला है. 13 मेरा प्राइम नंबर है,
13 इज माई प्राइम नंबर, तो मैं 13 को 13 से डिवाइड करूंगी. When 13 is divided by 13 it will give you 1. ये तो यहाँ पर ही फिनिश हो गया. अब आप यहाँ पर आ जाइए 52 पर. If you know that then the 13 fours is 52. 13 का फ्रेबल तो आपको आता ही है, तो 13 फोर्स क्या होता है 52. तो when you divide 52 with the 13 you will get 4 over here. Now 4 is divisible by 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, again 2, again 2 and your result will be this. Now फिर then I will write for HCF. अब हमें find out करना है HCF, तो write for HCF write factors of 13. तो 13 के क्या फैक्टर्स आए हैं 13, 1 और 13, सिर्फ 13 ही फैक्टर आया है. और सेकंड में देखो फैक्टर ऑफ योर 52. यहाँ पर हमें 1 लिखने की नीड नहीं है फैक्टर में, ठीक है, हमें 13 से लिखकर ही काम चल जाएगा. तो हम लिखेंगे 13 इंटू 2 इंटू 2. ये हमारे फैक्टर्स आए. अब इसमें से बेटा HCF निकालने के लिए फॉर HCF हमें क्या चेक करना होता है, जो नंबर दोनों में कॉमन होता है ना. अब इससे आपको और डिफरेंस क्लियर होगा HCF और LCM का. तो जो एक ही नंबर कॉमन होता है, यहाँ पर सिर्फ 13 कॉमन है, बाकी रेस्ट ऑफ द टूज के साथ हमें कुछ नहीं करना, तो हमारा HCF हो जाएगा 13. ये बात आपको समझने वाली है कि यहाँ पर अब हमारे टूज के साथ कोई रोल नहीं होगा, बिकॉज HCF में हमारा सिर्फ एक कॉमन नंबर आता है. लिखा. आफ्टर दैट LCM. अब यहाँ पर हमारे 2 रोल्स का 2 इन 2s का रोल होगा. 13 यू हैव टेकन 13, राइट 13 एज इट इज मेकिंग अ पेयर इनटू द लेफ्ट नंबर्स को भी हम HCF में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये बिग डिफरेंस है हमारा HCF में बच्चे और LCM में. HCF में एक नंबर जो कॉमन है उसे लो और बात खत्म. बट लेकिन LCM में कॉमन लेने के बाद भी जो नंबर रिमेनिंग होंगे उनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो 13 इंटू 2 इंटू 2 विल गिव यू 52. So your HCF is 13 and your LCM is 52. Okay, now next part of your question. What's the next part is saying to you? I don't have space, that is why I am writing here, otherwise you will write it down in your notebook. So next part is saying that you have to show by using the formula I am going to use it. LCM into HCF is equals to product of numbers. ठीक है, आप इसे फटाफट कॉपी डाउन करिए सो दैट आई कैन शो यू इन द बिग वे. नाउ स्टूडेंट्स, LCM into HCF is equals to product of numbers. आप HCF into LCM भी लिख सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं है, इससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. ठीक है, यू कैन चेंज इट ओवर हेयर. नाउ LCM is 52, राइट LCM over here and write this multiplication sign as it is. Similarly HCF is 13, right 13 is equals to product of the numbers. What are your numbers 13 and 52? That means you have to do the product. Product means बच्चे multiplication. तो आप देखो 15 into 13 और 13 into 52 are both the same things. जब multiplication हम डिजिट को रोटेट करते हैं तो हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होता. तो जैसे ही आप 52 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे you will get 676. Similarly you will get 676. तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया. सेकेंड पार्ट हमारे क्वेश्चन का कि जब भी हम LCM और HCF का प्रोडक्ट करेंगे और हमारे नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है. तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो दोनों इक्वल हो गई. तो हम लिख देंगे HS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स 21 and 27 is the B part. Pair is given to you. Again you have to find your factors. Okay, simple आप अपने factors find out करें. आप मैंने आपको मेथड बता दिया, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक होगा आंसर. बट आप इसे प्रेफर करेंगे तो रॉन्ग होने के चांसेस कम होंगे. ठीक है, तो अब आप देखो, आप यही मेथड फॉलो करना. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकाल कर और उसके बाद आप HCF और LCM निकालो. 21 मेरा 3 से डिवाइड होगा तो इट विल गिव यू 7 और 7 मेरा 7 से डिविजिबल होगा. यहाँ पर आ जाइए आप 3. 27 को इफ यू डिवाइड विद द 3 यू विल गेट 9. 9 इज डिविजिबल बाय 3. 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा 3 और 3 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4 1. ठीक है,
तो यहाँ पर आप लिखो बच्चे फैक्टर योर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। तो हमारी क्या हो गई फैक्टर 3 इंटू 7। सिमिलरली यहाँ पर आप प्राइम लिख देना प्रीवियस क्वेश्चन में भी, तो आपको इजी रहेगा डिफरेंस करने में, वरना आप कहोगे कि फैक्टर्स में तो और भी डिजिट होने चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27। ओके, नाउ अब हमारा क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3। बेटा HCF के लिए हमने क्या करना है, हमने कॉमन नंबर देखना है, तो कॉमन नंबर इज 3, तो राइट HCF इज इक्वल्स टू योर 3। ओके, नाउ आप देखो LCM के लिए हमें व्हाट वी हैव टू डू, HCF वी गॉट 3, नाउ LCM के लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखो 3 हमारा कॉमन आ गया, तो 3 तो वी आर गोइंग टू राइट। ओके, 3 वी आर गोइंग टू राइट, और रेस्ट द नंबर्स यू विल राइट फॉर द मल्टीप्लीकेशन। इन दो 3s को भी आप लिखोगे, और जो यहाँ पर 7 लेफ्ट है इसको भी आप लिखोगे। ठीक बच्चे, अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 9 9 3 27, दैट मीन्स 23 3 9 9 3 27। 27 की मल्टीप्लाई 7 से जब हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 189। ठीक बच्चे, तो अब हमारा LCM भी आ गया है और हमारा HCF भी आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ क्या करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो व्हाट इज योर LCM ओवर हियर 189, 189 इंटू HCF इज व्हाट 3 ओवर हियर, तो मल्टीप्लाई विद द 3, और हमारा नंबर क्या है 21 एंड 27, तो राइट इट ओवर हियर 21 इंटू 27। जब आप 189 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आपको मिलेगा 567, और यहाँ पर आप 21 और 27 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 567 अगेन। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस और नो। तो आपका प्रूफ हो गया कि हाँ हमारा LCM का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन और हमारे नंबर्स का प्रोडक्ट सेम है। तो अब C और D पार्ट को करने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर बुक। व्हाट इज रिटन? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 800। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मीन्स व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स यू विल गेट 800। ओके, वो कह रहा है कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 800 मिलेगा। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज मीन्स क्या है वो 800। ठीक, now your next part is saying that and their LCM is 400, that means उनका LCM कितना गिवन है 400। तो आप यहाँ पर लिखिए LCM, क्या गिवन है LCM हमें 400। now third is saying that find their HCF। तो क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं HCF, यानी कि HCF हमें नहीं गिवन। तो अब हम जाएंगे अपने फॉर्मूले पर। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है बच्चे, हमारा फॉर्मूला कहता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एक चीज हमेशा बच्चे याद रखना कि प्रोडक्ट हमेशा दो नंबर्स का ही होगा। इस केस में प्रोडक्ट दो ही नंबर्स का होगा। ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्ट कह रहे हैं तो यानी कि दो नंबर्स है ही है। आप देखो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो यानी कि यहीं से हमें आइडिया लग जाएगा कि HCF भी एक नंबर है और LCM भी एक नंबर है, तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा कितना गिवन है 800, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह हम लिखेंगे 800 रिटर्न। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड द HCF, तो हमारे पास HCF तो है ही नहीं, तो HCF की जगह हम HCF एज इट इज लिखेंगे इनटू। अब हमारा LCM कितना बच्चे 400, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 400। अब आप देखो, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है कि अगर हम किसी नंबर को दूसरी साइड यानी कि सेकंड साइड लेकर जाते हैं तो उसके साइन में चेंज आता है। जिनको नहीं पता, आई विल टेलिंग यू, अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड अगर हम उसे ट्रांसफर करते हैं तो वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 400 को इस साइड लेकर जाएंगे, तो HCF को आप यहाँ पर ही लिखेंगे। 400 के आगे वाला आप साइन देखो मल्टीप्लाई कर, तो सेकंड साइड जाकर यानी कि दूसरी साइड जाकर क्या होगा वो 400, तो वो डिवाइड होगा। तो यानी कि 800
डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन चेंज हो गया हमारा डिवीजन में। तो जैसे ही आप 800 और 400 को डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करते हैं हम 800 और 400, 400 2 इज 800, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, तो हमारा रिजल्ट आया 2। दैट मीन्स HCF हमारा कितना आया बच्चे, HCF आया हमारा 2। हमने यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन था जो हमारा 800 था। देन इसके बाद हमें उसने कहा कि एंड देयर एलसीएम इज 400, यानी कि उसका एलसीएम गिवन है वो हमारा 400 था। उसने कहा फाइंड HCF, उसने हमें कहा कि हमें HCF को फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, दिस इज आवर फॉर्मूला विच यू हैव डन इन योर क्लासेस, दैट HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक, तो HCF हमें नहीं गिवन था, HCF की जगह HCF एज इट इज लिखा। एलसीएम हमें गिवन था 400, तो हमने 400 लिखा, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें 800 गिवन था, तो हमने 800 लिखा। तो यहाँ पर जो भी डिजिट है 400 से पहले आप देखो क्या साइन है, हमारा इंटू का साइन है, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, साइन डिवाइड का। हम दूसरी साइड जब भी डिजिट ले जाते हैं तो डिवाइड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो 800 को हमने 400 से डिवाइड किया, तो हमारा रिजल्ट आया 2। In the starting of the class, students, I have arranged a question who is known as father of mathematics. So I hope so many students has find it out on the net. So it's my duty to tell the answer to you also. The father of mathematics is Archimedes. I repeat, father of mathematics is. So students, homework of your this class is question number 1 C D part, question number 2 C D part. Similarly, question number 3 C D part, question number 4 C D part, and you have to send this to me on the mail, okay, so that I can check and you can improve the mistake in your notebooks. आपकी नोटबुक्स जब चेक होंगी तब कोई मिस्टेक आपकी नोटबुक में नहीं होगी। फॉर दैट टाइम बिंग, okay, do your homework and send it to me.